Good morning. Hello everyone. Bro. Hi. Hey Aisha, so you also came to learn acting? Obviously. Bro, we all are here to learn filmmaking. Yo. आहा मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना लग रहा है पर मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना अरे मैं बम्बई का बाबू अरे इतने पुराने गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? My grandfather used to listen this song. I remember it's a very old song. अरे हाँ, पुराने से याद आया। क्या किसी को पता है ये इंडियन सिनेमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ओह, मैं बताती हूँ। You all believe that our Indian film industry more than 100 years? Exactly. Hollywood is in the industry. Our own Indian film industry. No. Hollywood? Yes. India makes 3 times more movies than anyone. 3 times? बहुत ज़्यादा है. को पता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को शुरू करने वाले Oh yes, I know. सुनो मैं बताता हूँ. The person who gave India a magical film industry was Dada Saheb Phalke, and we should be thankful to him that Phalke, the father of Indian cinema, made 95 films in just 19 years. 19 years? years? That's crazy. So basically, he was a photographer. But when he saw a movie named The Life of Christ, changed his life. And do you know, guys, the first movie, which is the foundation stone of Indian cinema, he made a silent one. Silent one. Yes, Raja Harish Chandra in 1913 was the actor, financer, producer and director of his own movie. He bought his camera from London. London? Yes, और इस मूवी को मुंबई के कोरोनेशन हॉल में रिलीज किया गया था. एक भी बना था इन हरीश चंद्रा की फैक्ट्री. गांव में मेरे दादाजी ने भी ये मूवी देखी थी. गांव में? उस समय गांव में तो क्या, शहरों में भी थिएटर नहीं होते थे. अरे होते थे. बाइस्कोप याद है? हाँ. Good evening, class. गुड प्रोफेसर. Please be seated. लगता है आज आप सब फिल्म्स पर बातें कर रहे हैं. Yes, professor. Great. बट कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इंडियन सिनेमा की शुरुआत के बारे में कुछ पता है? यस. प्रोफेसर, हम सबको ये पता है कि राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी. बिल्कुल सही. दादा साहेब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई और वहीं से हमारे इंडियन सिनेमा का सफ़र शुरू हुआ. लेकिन तब सीन्स बिल्कुल अलग हुआ करते थे. बहुत सिंपल और स्टेज प्ले जैसा लगता था. नो वीएफएक्स, नो बिग स्टंट्स, सब कुछ बहुत बेसिक था. लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा सिनेमा इवॉल्व हुआ. डायरेक्टर्स लाइक पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत रे, बी.आर. चोपड़ा और इनके जैसे न जाने कितने लोगों ने हमारे इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी है. There were different subjects like mythology, devotional, religions, romance, which were introduced in the Indian cinema. Today, I have a very interesting thing for you all. This bowl has different genres of Indian cinema written. Your task is to pick one and then we'll have a discussion over them. I'll start with you. Pick yours and then pass the bowl to others. Do not disclose your chits to others, okay? Okay, so now the class is over. You may leave. Be prepared. Good Good morning. evening, students. Good morning, professor. Good morning, professor. Please be seated. So, what ideas do you have about the movies based on mysteries and detectives? प्रोफेसर, मुझे ऐसा लगता है
कि इंडियन सिनेमा ने डिटेक्टिव्स को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया है। एक्चुअली प्रोफेसर, मेरे फादर उन फिल्मों के बड़े फैन हुआ करते थे। फिल्में जैसे वो कौन थी, गुमनाम एंड ज्वेल थीफ। And the most interesting part is that these films maintain the suspense till the end. absolutely correct. The kind of effort they had put in is really commendable because tech wasn't that good. प्रोफेसर, मेरे को तो उन हीरोज के कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप्स बहुत अच्छे लगते थे। आई एग्री ब्रो, दोज लॉन्ग कोट्स, फेल्ट हैट्स और वो मोटे मोटे पाइप्स हुआ करते थे ना, उन्हें देखकर मानो जैसे इंडियन शर्लॉक होम्स आ गया। And if we talk about today's detective movies, the technology used has made it so realistic and convincing. Yes, yes, I am an all-time fan of these movies. It's because they keep me glued to the television set. Yes. Well done, students. I loved your points. The class is over now. You may leave. ब्रो, वो कौन सी मूवी थी जिसमें उत्पल दत्त का एक बहुत फेमस डायलॉग था? गोलमाल है भाई, गोलमाल है सीधे रास्ते की तेरी चाल, गोलमाल गोलमाल। अरे मूछ तो लगा लो। मनुष्य को अपने आदर्शों और मूछों का उचित आदर करना चाहिए मित्रों। मन का दर्पण है, वाह 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 वाह। But seriously, the dialogues, the script, and the storyline earlier was so engaging and realistic. Artists like Mahmood, Johnny Walker were legendary. महमूद जी का गाना, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अरे हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है डूड। चलो अब ये करते हैं, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, अरे काहे घबराए। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, अरे काहे घबराए। वाह 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 वाह, चले चलो हाँ चलो ते। ब्रो, वो कौन सी मूवी थी जिसमें उत्पल दत्त का एक बहुत फेमस डायलॉग था? गोलमाल है भाई, गोलमाल है सीधे रास्ते की तेरी चाल, गोलमाल गोलमाल। अरे मूछ तो लगा लो। मनुष्य को अपने आदर्शों और मूछों का उचित आदर करना चाहिए मित्रों। मन का दर्पण है, वाह 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 वाह। But seriously, the dialogues, the script, and the storyline earlier was so engaging and realistic. Artists like Mahmood, Johnny Walker were legendary. महमूद जी का
गाना। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अरे हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है डूड। चलो अब ये करते हैं, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, अरे काहे घबराए। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, अरे काहे घबराए। वाह 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 वाह, चले चलो हाँ। गुड इवनिंग प्रोफेसर। गुड इवनिंग प्रोफेसर। Please be seated. So today it is whose turn? Professor, it's mine. And the topic is historical. Okay. So, dear friends and teachers, today I would like to tell you that historical movies have a deep impact on Indian people's minds. Thank you. Well said. Big banners like RK Production and Rashtriya Productions used to work in these films. I agree. And in today's times, it becomes a bit of a controversy. That's why people don't attempt much. Students, a special mention that you all have forgotten the unforgettable contribution of the legendary director and producer Ram Nanda Sagar and Moti Sagar, and the great music director Ravindra Jain. Thank you, Professor, for the special mention. We absolutely missed it. Hindi cinema has introduced variety of historical figures and events, educating common citizens about our history. Through these films, audience have become familiar with the legendary personalities. The class is over, you may leave now. Thank you, Professor. Welcome. चलो ते फुटबॉल खेल के आ रहे हैं। फुटबॉल खेल के आ रहे हैं। अरे तुम लोग इतना स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हो, अपने प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सोचा भी है? अरे पता है, स्पोर्ट्स की मूवीज तो इतनी इंस्पायरिंग है कि उन पे रिसर्च करते करते मुझे खुद स्पोर्ट्समैन वाली फीलिंग आने लगी है। मूवी से बिल्कुल सही। अगर स्पोर्ट्स पर मूवीज नहीं बनी होती तो we would have not known these legends. These movies shows their inspiring life journey. ये तो सही है। मैरी कॉम, दंगल, MS धोनी, सहना नेहवाल जैसी मूवीज देखकर अब तो यंगस्टर्स ने भी स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट कर लिया है। गुरप्रीत, क्या तुमने KGF देखी? उसके एक्शन सीन्स तो नेक्स्ट लेवल थे। Absolutely, रॉकी भाई का एटीट्यूड एंड फाइट सीक्वेंसेस वो माइंड ब्लोइंग। द वे दे शो द पावर डायनामिक्स, आई लव्ड इट। सही कहा, बट मुझे वॉर के स्टंट ज्यादा पसंद आते हैं। ऋतिक और टाइगर के बीच के फाइट सीन्स वर सुपर इंटेंस। उस मूवी का क्लाइमैक्स एक्शन, इट वाज एपिक। एब्सोल्युटली, दोनों एकदम बीस्ट मोड थी। लेकिन फिर भी मैं बाहुबली को ऊपर रखूंगी क्योंकि उस मूवी में एक्शन के साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी बहुत बढ़िया थी। हाँ, राजमौली सर ने एक्शन और ड्रामा का बहुत सही से बैलेंस किया था। अरे गुरप्रीत इतनी जल्दी सो गई क्या? इतनी जल्दी सो जाएगी तो कल के असाइनमेंट का क्या होगा? चलो मैं ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। हेलो क्लास, टुडे I'll tell you something interesting about action films. Earlier, when technology was simple, stunt masters and fight masters हमारी फिल्मों के बहुत ज़रूरी अंग हुआ करते थे। Even बॉक्सिंग की आवाज़ मुंह से निकाली जा सकती थी, जैसे ढिशुम ढिशुम। वीरू देवगन was one of the finest stunt masters in the industry. आजकल की इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है that these movies give us a realistic feel. Thank you, Professor. Thank you, class.
नींद तो तुमने मेरी खराब कर ही दी है। चलो कहीं घूम ही आते हैं। चलो चलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी सीटेड। आप सभी ने काबिले तारीफ काम किया है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। आप सभी ने भगत और राजगुरु की काफ़ी फिल्में देखी होंगी, उसी में से कुछ रिक्रिएट कीजिए। यू कैन कंटिन्यू योर डिस्कशन, आई एम लीविंग। यू आर वेलकम।